Now, for all their intimacy, which had lasted some years now, they had never talked without a fence or a railing between them. Here, the author is expressing about the intimacy of the character, which had lasted some years now. They had never talked without a fence. And for some years, they never talked without a fence or railing. Okay, यानी कुछ for all their intimacy, although they were very intimate with each other, which had lasted some years now, they had never talked without a fence. उन्होंने कभी भी फेंस के बिना बात नहीं की. फेंस यू नो, बाउंड्री के बिना. ओके, और अ रेलिंग बिटवीन देम, या फिर उनके बीच में एक रेलिंग हुआ करती थी. इट मीन्स बाउंड्री के और रेलिंग के बिना उन्होंने कभी बात नहीं की. He described to her all the splendors accumulated for the setting of their housekeeping, and he also represent all the things which he accumulated, which he collect for the setting of their housekeeping, but had never invited her to an inspection. Although he has collected a lot of material there in the cottage, but he never want to show anybody. It means although he was very intimate with Bessie, but he never said to her that she should come and watch all the material which he accumulated. ठीक है, यानी कि वो कभी भी बेसी को इनवाइट नहीं करता था. किसके लिए? उन चीजों को देखने के लिए. क्लियर? ऑल्दो वो बहुत अच्छे से उससे बात किया करता था, बट वो कभी भी बेसी को इनवाइट नहीं करता था उन चीजों को देखने के लिए. He described to her all the splendors. उसने सारे स्प्लेंडर्स उसको दिखाए थे, लेकिन उसने कभी भी उनका इंस्पेक्शन नहीं करवाया था, यानी कभी भी उसको दिखाया नहीं था. No human eye was to behold them till Harry had his first look, and it was the tendency of him, because he wanted that Harry will give him, यानी give them the first look, यानी हमेशा पहली लुक कौन देगा? हैरी. हैरी will come here and give him first look, यानी सबसे पहली जो लुक होगी उन मटेरियल्स की, उन चीजों की, वो कौन डिसाइड करेगा, कौन देखेगा? हैरी. यानी हैरी जब आएगा तभी उन चीजों को देखेगा. कौन सी चीजें? कौन सी चीजों को? हेलो, स्प्लेंडर्स कलेक्ट करता था. तो कौन से स्प्लेंडर्स? जस्ट एज कारपेट्स, just as furniture and different type of other object utensils he collected there and put them in the cottage, but he never want to show anybody. वो किसी को भी वो दिखाता नहीं था उनको. and ever he think that the Harry had his first look. सबसे पहले हैरी आएगा और उनको देखेगा. इज इट क्लियर टू यू? न्यू स्टूडेंट के लिए ये है कि जब पूछेंगे हमसे स्टार्टिंग से चैप्टर और उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, तो वो उनको समझ में आ जाएगा. इन फैक्ट नोबडी हैड एवर बीन इनसाइड हिज कॉटेज. इन फैक्ट रियलिटी में हैड एवर बीन इनसाइड हिज कॉटेज, वो उसके कॉटेज में कभी भी नहीं गई. कौन नहीं गई? बेसी. He did his own housework, and he guarded his son's privilege so jealously that the small objects of domestic use he bought sometimes in the town were smuggled rapidly across the front garden under his
canvas coat. In fact, nobody had ever been inside his cottage. उसकी cottage के अंदर कोई भी नहीं गया कभी भी. He did his own housework. वह अपना housework खुद ही किया करता था. And he guarded his son's privilege. और जो सन के लिए उसने चीजें इकट्ठी की थी, कलेक्ट की थी, so jealously that the small object of domestic use he bought sometimes in the town were smuggled rapidly across the front garden under his canvas coat. क्या करता था वो? अपने कैनवास कोट के अंदर छिपा कर लाता था उन ऑब्जेक्ट्स को. ओके, फ्रंट गार्डन से छिपा कर लाता था और उन हाउस होल्ड डोमेस्टिक ऑब्जेक्ट्स को भी रख देता था. किस लिए? कि जब हैरी आएगा ही विल यूज्ड दीज ऑब्जेक्ट, यानी he will use these objects मतलब कि वह ही उन चीजों को यूज करेगा. ओके, नेक्स्ट. Then coming out he would remark apologetically, it was only a small kettle my dear. और फिर वो कन्फेस करता था इस बात को कि he is not showing to others. तो वो क्या कहता था उस लड़की से, वैसी से, इट वॉज ओनली ए स्मॉल कैटल, ये तो एक छोटी सी कैटल है माई डियर, केवल एक कैटल लेके आई हूँ. इट मीन्स वो एक्सप्लेनेशन देता था इस बात का कि और कुछ नहीं है, एक कैटल लेके आया हूँ. ठीक है, क्लियर. अब नेक्स्ट. एंड इफ नॉट टू टायर्ड विद हर ड्रजी और वरीड बियॉन्ड endurance by her father, she would laugh at him with a blush and say, "That's all right, Captain Hagward. I am not impatient." उसने कहा, तब वो कहा करती थी लड़की, and if not too tired with her drudgery or worried beyond endurance by her father. कहने का सेंस ये है कि वो थकती नहीं थी इस बात से कि, और वरीड बियॉन्ड एंड्रेंस बाय हर फादर, उसकी जो फादर की बिहेवियर था, उसका जो नेचर था, उससे भी वो वरीड नहीं थी. बिकॉज ऑफ सी वॉज मच पजल्ड एज यू नो अबाउट इट, कि तुमको अच्छी तरीके से पता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी इस तरीके की चीज़ें से. दैट्स ऑल राइट कैप्टन हैगवर्ड, आई एम नॉट इम्पेशेंस. और वो कहती है ठीक है कैप्टन हैगवर्ड कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. शी वुड लाफ एट हिम विद द ब्लश, हल्का सा शर्मा के, कि दैट्स ऑल राइट, ठीक है कैप्टन हैगवर्ड, आई एम नॉट इम्पेशेंस, मैं बिल्कुल भी इम्पेशेंस नहीं हूँ. क्योंकि वो कहता है कि तुम हमारी डॉटर इन लॉ होगी. तो जब वो ये बोल रहा है कि डॉटर इन लॉ होगी, इट मीन्स शी विल बी यूज्ड ऑल द ऑब्जेक्ट, वो सारे ऑब्जेक्ट खुद ही यूज करेगी. ओके, वेल माई डियर, यू हैवंट लॉन्ग टू वेट नाउ. उसने कहा ठीक है डियर, अब आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है. ही वुड आंसर विद अ सडन wastefulness and looking about uneasily. Although he knew about it, he was not confirm about it. देखिए वो जो है, वो ये जो कह रहा है सेंटेंस कि My dear, you haven't long to wait now. ज्यादा समय तक अब तुमको इंतजार नहीं करना पड़ेगा. ये बात वो कह जरूर रहा है, but he was giving answer about without any confirmation. बिना किसी confirmation के ये बात वो कह रहा है. And looking about uneasily, और and looking about uneasily वो बहुत ही uneasy दिखाई दे रहा है, as though he had suspected that there was something wrong somewhere. और as though he had suspected, वो इस बात के लिए suspected था that there was something wrong somewhere, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज wrong रह गई है. Okay, every Monday she paid him his rent over the railings. हर मंडे को वो उसे क्या देती थी? रेंट देती थी, रेलिंग पे से, यानी बाउंड्री, जो रेलिंग जो थी विद देम, उनके बीच में थी. दैट्स व्हाई दे मीट नेवर. और वो उस बाउंड्री के रेलिंग के पीछे एक साइड वैसी रहा करती थी और दूसरी साइड कैप्टन हैगवर्ड.
तो वो रेंट भी रेलिंग से ही दिया करते थे। ही क्लच्ड द सीलिंग्स ग्रीडीली, और वो उन चीजों को, क्लच्ड मतलब मुट्ठी में कसकर पकड़ लेता था उन सीलिंग्स को, ग्रीडीली, ग्रीडीली इट मीन्स लालच से। ओके, he grudged every penny he had to spend on his maintenance, and when he left her to make his purchases, his wearing changed as soon as he got into the street. He grudged every penny he had to spend on his maintenance, and when he left her to make his purchases, his wearing changed as soon as got into the street. देखिए क्या कहना चाह रहा है, स्पेसिफिक सेंटेंस है ये। He was a very miser. वो जितनी भी उसकी पैनीज थी उनको बहुत अच्छी तरह से वो चाहता तो मेंटेनेंस पर खर्च कर सकता था, वो अच्छी तरह से लाइफ एंजॉय कर सकता था, लेकिन वो क्या करता था, ही वॉज अ माइजर एंड ही सेव ऑल द मनी, और सारे पैसों को वो बचाता था। एंड व्हेन ही लेफ्ट हर टू मेक हिज परचेजेस, हिज वेयरिंग चेंज्ड एज सून एज ही गॉट इनटू द स्ट्रीट। यानी जैसे ही वो परचेजिंग करता था और उसके बाद जैसे ही वो स्ट्रीट पर आता था उसके बिहेवियर में चेंज हो जाता था। कैसे, ये बात मैं बताना चाहूंगी आपको, क्योंकि देखिए although he is not spending much money on himself, but he was accumulated the things there in his cottage for Harry Hagward, because of he was much worried about the future of Harry Hagward. Harry Hagward के फ्यूचर के लिए वो बहुत ज़्यादा worried था, जबकि he was not paying attention towards himself. वो अपने आप पर अटेंशन पे नहीं कर रहा था, वो चीप क्वालिटी का मीट खरीदता था, आपको ये बात ऑलरेडी डिस्क्राइब किया गया है। और उसकी वो अपने मतलब कोट, एक कैनवस का कोट पहने रहता था हमेशा, तो दैट्स वाई ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स हिमसेल्फ, वो अपनी तरफ कोई अटेंशन पे नहीं कर रहा था, लेकिन हैरी हैगवर्ड के लिए वो बहुत सारी चीजें कलेक्ट करके रखता था। इज इट क्लियर टू यू? हेलो स्टूडेंट्स? यस मैम। ठीक है। Now, away from the sanction of her pity, he felt himself exposed without defense. Away from the sanction of her pity, he felt himself exposed without defense. अब देखिए आगे क्या है। उसकी वो जो गर्ल थी उसके प्रति उसका कोई ऐसा पिटी नहीं था, पिटीफुल, although he like him, but although he like her, but he was not pitiful towards her also. He felt himself exposed without defense. He exposed himself without any defense. यानी बिना किसी डिफेंस के वो क्या करता था, अपने आप को एक्सपोज करता था। He brushed the walls with his soldiers. मतलब he brushed his walls with his soldier, वो अपने कंधों से वॉल को रगड़ता था। he mistrusted the queerness of the people. देखिए इसका मतलब ये है, brushed the walls with his shoulder, it means कि वो अपने कंधों से वॉल को ब्रश करना, इसका मतलब कोई नहीं था, इसका सेंस ये था, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रश करना ही, इट मीन्स वह दूसरों की बातों को बहुत महत्व नहीं देता था और दूसरों की बातों पर वो मतलब कि बिलीव भी नहीं करता था। ओके, ही मिसट्रस्ट द क्वेयरनेस ऑफ द पीपल, येट बाय देन इवन द टाउन चिल्ड्रन हैड लेफ्ट ऑफ कॉलिंग आफ्टर हिम। देखिए उसका जो उसके नेचर से क्या हुआ था, जब वो किसी से बात नहीं करता था, लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता था, तो जो चिल्ड्रन थे वो उसके पीछे दौड़ते थे आफ्टर हिम, एंड द ट्रेड्समैन सर्व्ड हिम विदाउट अ वर्ड। यानी जो व्यापारी वर्ग थे जिनसे वो चीजें परचेज करने जाता था, शॉपकीपर, वो उससे बिना कुछ बोले क्या करते थे, उन्हें बिना कुछ बोले वो सामान दे दिया करते थे। इट मीन्स दे इग्नोर हिम, क्योंकि देखिए वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता था। आगे, द स्लाइटेस्ट allusion
to his clothing had the power to puzzle and frighten, especially as if it was something utterly unwarranted and incomprehensible. देखिए सबसे बड़ी बात क्या थी, इसका रीजन क्या था, उसके प्रति जो लोगों का बिहेवियर था वो इस तरह का क्यों था? द स्लाइटेस्ट एल्यूजन, कुछ भ्रम था लोगों के दिमाग में, टू हिज क्लॉथिंग, उसके कपड़ों को लेकर, हैड द पावर टू पजल एंड फ्रिटन स्पेशली, यानी कि उसकी क्लॉथिंग में ऐसी पावर थी कि लोगों को पजल कर देता था। ठीक है, कई बार उसकी क्लॉथिंग जो थी उसको पजल कर देती थी दूसरों को, एंड फ्रिटन स्पेशली, और स्पेशली डरा देती थी। यानी कैनवास का लंबा सा कोट था और वो हर वक्त उसी को पहने रहता था, तो दैट्स वाई लोग उससे डरने लगे थे और कई बार पजल्ड हो जाते थे, स्पेशली एज इफ इट वर समथिंग अटरली अनवारंटेड एंड इनकम्प्रहेंसिबल। यानी इसका मतलब ये था कि जो वह एक अनवारंटेड लगता था, कि जिस बात की कोई उसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कैसे रहेगा, कोई नोट नहीं था उसके बारे में कि, और इनकम्प्रहेंसिबल का मतलब होता है कि कोई स्पष्टता, कोई क्लैरिटी नहीं थी इस बात की कि वो किस तरह का कैरेक्टर है। क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? यस। नाउ in the autumn, the driving rain drummed on his sailcloth suit, started almost to the stiffness of sheet iron, with its surface flowing with water. When the weather was too bad, he retreated under the tiny porch and, standing close against the door, looked at his spade left planted in the middle of the yard. The ground was so much dug up all over that as the season advanced it turned to a quagmire. When it froze hard, he was disconsolate. What would Harry say? And as he could not have so much of Bessie's company at that time of the year, the roars of old Carvel that came muffled through the closed windows, calling her indoors, accepted him greatly. देखिए, accepted him greatly. आगे, in the autumn, ऑटम सीजन में, पतझड़ के मौसम में, द ड्राइविंग रेन ड्रम्ड ऑन हिज सेल क्लॉथ, और जब उसके सेल क्लॉथ सूट पर जो बारिश की बूंदें गिरा करती थी, स्टेचर्ड ऑलमोस्ट टू द स्टिफनेस ऑफ शीट आयरन, तो कैसी आवाज आती थी? शीट आयरन की जैसी। ठीक है, विद इट्स सरफेस फ्लोइंग विद वाटर, और इसकी सरफेस से पानी जो था वो बह जाया करता था। ठीक है, when the weather was too bad, और जब वेदर बहुत ही बैड होता था, he retreated under the tiny porch and standing close against the door. He retreated under the tiny porch, तो वो क्या करता था कि टाइनी पोर्च, यानी उसका छोटा सा जो पोर्च एरिया था उसके अंदर वो जाकर वहां खड़ा हो जाता था, एंड स्टैंडिंग क्लोज अगेंस्ट द डोर, दरवाजे के पास में, लुक्ड एट हिज स्पेड, अपने फावड़े की तरफ देखता था, लेफ्ट प्लांटेड इन द मिडल ऑफ द यार्ड, जो कि मिडल ऑफ द यार्ड में पड़ा है, आंगन के बीच में पड़ा है। द ग्राउंड वॉज सो मच डग अप ऑल ओवर, यानी ग्राउंड पूरी तरीके से खोद दी गई थी, दैट एज द सीजन एडवांस्ड इट टर्न टू अ क्वैगमायर, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वहां पर बारिश आती थी तो एक पॉन्ड के जैसा बन जाता था, पानी उसके अंदर भर जाया करता था, एंड व्हेन इट फ्रोज हार्ड ही वाज डिस्कॉन्सोलेट। व्हाट वुड हैरी, व्हेन इट फ्रोज हार्ड, जब पूरी तरीके से जम जाता था, तो व्हेन ही वाज डिस्कॉन्सोलेट, डिस्कॉन्सोलेट मतलब वो इस तरीके का हो जाया करता था, उसके अंदर खुद के बिहेवियर में चेंजेस आ जाया करता था, एंड डिस्कंसोलेट हो जाता था, वो उसकी कॉन्शियस उसको कन्फर्मेशन नहीं देती थी,
एंड वॉट वुड हैरी से, हैरी क्या कहेगा, एंड as he could not have so much of Bessie's company at that time of year, और जैसा कि he could not have so much of Bessie's company at that time of year, उस समय पर वो बैसी की कंपनी में बहुत ज़्यादा नहीं रह पाया था. द रोड्स ऑफ ओल्ड कार्वेल, और जो उस ओल्ड कार्वेल की के रोड्स थे, यानी ओल्ड कार्वेल जो था, जो जोर जोर से चिल्लाता रहता था वैसी से, दैट कैम muffled through the closed windows, calling her indoors, separated him greatly. यानी कहने का मतलब ये है कि उसने अपनी विंडोज को क्लोज कर लिया था वैसी ने, और उसमें से साउंड जो बाहर आया करती थी वो बहुत कम थी. इस तरह से वैसी और कैप्टन हैगवर्ड दोनों सेपरेटेड हो गए थे, और वो एक दूसरे से सेपरेटेड हो गए थे हिम ग्रेटली, और ये बहुत ज़्यादा था. इट मीन्स दे वर वेरी इंटीमेट, दे टॉक विद ईच अदर, बट नाउ इट इज ही सेपरेट विद ईच अदर. ओके, वो एक दूसरे से सेपरेट हो चुके थे. वाई डोंट दैट एक्स्ट्रावेगेंट फेलो गेट यू अ सर्वेंट, ही आस्क्ड इम्पेशेंसली वन माइल्ड आफ्टरनून. तो जब बैसी बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी अपने वर्क में, तो एक दिन वाई डोंट दैट एक्स्ट्रावेगेंट फेलो गेट यू ए सर्वेंट, तुम्हारे लिए एक सर्वेंट क्यों नहीं रख देता ये कंजूस व्यक्ति. उसने एक दिन इम्पेशेंस होकर ये पूछ लिया था. शी हैड थ्रोन समथिंग ओवर हर हेड टू रन आउट फॉर ए वाइल. शी हैड थ्रोन समथिंग ओवर हर हेड, यानी उसने कुछ अपने सिर पर गिरा लिया था. टू रन आउट फॉर अ वाइल, और वह एक क्षण के लिए भागकर बाहर आ गई थी. आई डोंट नो सेड द पेल वैसी, और उस पेल वैसी ने, पेल वैसी इट मीन्स जिसका चेहरा पीला पड़ा जा रहा था, उस वैसी ने जवाब दिया, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती. वेयरली स्टारिंग अवे विद हर हैवी लिडेड ग्रे एंड अनएक्सपेक्टेड ग्लांस. थकी हुई, वेयरली मीन्स थकी हुई, स्टारिंग यानी दूर तक देखना, विद हर हैवी लिडेड, हैवी लिडेड मतलब उसकी पलकें जो हैं वो भारी हो रखी थी, ग्रे कलर की आंखें, एंड अनएक्सपेक्टेड ग्लांस, और बिल्कुल उसको मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऐसी ग्लांस, ऐसी लुकिंग दी उसने. ठीक है, एंड शी डिड नॉट सीम एबल टू सी एनी चेंज और एनी एंड टू हर लाइफ, और वो इस बात के लिए बिल्कुल भी एबल नहीं थी टू सी एनी चेंज और एनी एंड ऑफ हर लाइफ, कि उसका लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे या उसके प्रति कुछ अच्छा होगा. शी वॉज नॉट कन्फर्म अबाउट इट, वह किसी बारे में कन्फर्म नहीं थी. एंड यू वेट टिल यू गेट मैरिड माई डियर, सेड हर ओनली फ्रेंड. उसका एक ही फ्रेंड था कैप्टन हैगवर्ड, उसने कहा कि यू वेट टिल यू गेट मैरिड, तुम इंतजार करो जब तक कि तुम्हारी शादी होती है. माय डियर, ड्रॉइंग क्लोजर टू द फेंस, और जब वो फेंस के आसपास आते हैं तब वो ये बात कहता है, हैरी विल गेट यू वन, और हैरी उनमें से एक होगा. इट मीन्स हैरी से आपकी मैरिज हो जाएगी. His hopeful craze seemed to mock her own want of hope, यानी उसकी इस तरह के बिहेवियर ने, होपफुल क्रेज ने, seemed to mock her own want of hope with so bitter an aptness that in her nervous irritation she could have screamed at him outright. Harry will get you one. अब his hopeful craze, ये जो उसकी होप थी, उम्मीद थी, क्रेजीनेस उसे लगती थी वैसी को, टू मॉक हर ऑन वांट, यानी ऐसा लगता था कि उसकी मजाक उड़ाई जा रही है. विथ सो बिटर, कितनी कड़वाहट थी, एंड एप्टनेस दैट इन हर नर्वस इरिटेशन, उसका जो वो कई बार इस मामले में नर्वस हो गई थी, इरिटेट हो गई थी. शी कुड हैव स्क्रीम्ड एट हिम आउटराइट,
और कई बार वो इस बात पर स्क्रीम्ड मतलब चिल्ला देती थी, ठीक है। सो नाउ we will close the topic today for today, and tomorrow I will explain again. Okay, ma'am. Thank you, ma'am.